करते हुए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन that we are going to solve today is we have a array, okay, which have infinite numbers, okay, between 1 to n, and our task is to sort them. This is the question. Okay, so I will give you 1 to 2 minutes so that Shruti and Rahim can think for the solution. Okay, I will just tell the approach. You can write the code by your own. Okay, so basically we are given an array which have infinite number of elements and the numbers are between 1 to n. Our task is to sort them. One to nine, not one to n. 1 to 9. श्रुति, कुछ आंसर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इसको? ओके, सो सर वही बेसिकली टेक्निक लगाएंगे ना, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा तो उसको फर्स्ट इंडेक्स में रखते जाएंगे। फर्स्ट नहीं मीन्स ऐसे क्रम से। ठीक है. सो बेसिकली सपोज देर आर n टर्म्स, राइट? और अगर तुम्हें इसको सॉर्ट करना है तो कोई सी भी सॉर्टिंग अप्रोच यूज़ कर लो. लेट्स से यू आर यूजिंग बबल सॉर्ट, insertion sort, okay. If you are using any sorting, the time complexity will be order of n square. So basically what you have to do, you have to use the for loop. So you picked one element, now you will compare, is it greater or smaller? Then you have to compare with the second element, third element, fourth element, fifth element, sixth element. Then you will pick this element, now you will start comparing with the other elements, okay. Then you will pick this element and you will start comparing with the other elements. Like this you have to write two for loops, so the time complexity will be order of n square, okay. But we want to improve the time complexity. So how we can improve the time complexity? So basically in the question they told that we have an array from which have digits from 1 to 9. So what we will do, we will create a new array of size 9, okay. So basically we have to create an array of size 9. So basically we have numbers like this 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let's create the array of size 10. Why? Because there might be possibility that means if the numbers are from 0 to 9, then you need to create the value till 10. If it is 1 to 9, then it's okay. Like if it is 1 to 9, then array of size 9 will be okay. Okay, so this will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now basically what you need to do is you need to traverse the array. So if you get 1, so you need to increase the count. Initially you need to start all the arrays with the value as 0. So as soon as you get the value 1, what you need to do, you need to increase the count. As soon as you get the value 2, you need to increase this count. As soon as you get 1, you need to again increase the count, it will be 2. Again you got the value 1, so increase the count to the 3. Again you got the value 2, increase the count. Again you got the 2, increase the count. If you got the 3, it will be 1. Again you increase the count, it will be 2. So now you got to know that there are 3 1, 3 2 and 2 3. So you can make an array with this count. And then rest of the elements will be 0. So this will be our final array. So here how much time we took? First of all we traverse the entire array, so the time complexity will be order of n. Again we traverse this array, so it will be again order of n. So n plus 1, n plus n will be equals to 2n, so the time complexity will be order of n in this case. Okay? यस सर। ठीक है. So
This is the one question that we were discussing. Other question that we were discussing is okay. Uh, should we Shanu, you got any answer? कैसे करना है उसको बताऊं मैं? या आगे बढ़े? सर एक्स वाला ना? हाँ हाँ, एक्स वाला. हाँ सर बता दीजिए. ओके, एक बार श्रुति को भी अपन क्वेश्चन बता देते हैं. सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ठीक है, अपन को क्या करना है, बेसिकली अपन को ऐसा गिवन है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें 100 फ्लोर्स है, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, 100 माले हैं जिसमें, राइट. एंड वी हैव 2 आइडेंटिकल एक्स, राइट. और तुम्हें क्या बताना है, यू नीड टू फाइंड द हाईएस्ट फ्लोर दैट अ एग कैन बी ड्रॉप्ड विदाउट ब्रेकिंग. ओके, जैसे तुमने फर्स्ट फ्लोर से एग फेंका, ठीक है, और वो ब्रेक नहीं हुआ, तो ऐसे तुम्हें बताना है कि तुम कौन से फ्लोर से एग फेंकोगे कि वो टूट जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, the challenge is to minimize the number of egg drops required in the worst case. Okay, you need to minimize the number of egg drops. मतलब अपन को egg drops को minimize करना है. तो सोचो, इसके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ. सर समझ नहीं आ रहा, एग ड्रॉप को मिनिमाइज कैसे करेंगे? मतलब जैसे तुमने एक अंडा फेंका, ठीक है, तुमने 5th फ्लोर से अंडा फेंका और वो अंडा नहीं टूटा, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें वो फ्लोर बताना है जहाँ से अंडे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे. तो जब तक तुम उन अंडों को गिराओगे नहीं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा ना कि किस फ्लोर से अंडे नहीं टूट रहे. यस सर, तो वो तो हर एक कंडीशन में हमको गिराना पड़ेगा अंडे को कि कहाँ से हाँ, तो वो मिनिमम टूट रहे कितने हैं. अंडे तुम गिराओगे तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा. मतलब कितने मिनिमम अंडे के तुम वेस्ट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई इस फ्लोर से तो अंडे टूटेंगे. मिनिमम कितने अंडे लगेंगे. जैसे मान लिया हमने, सर आपने बोला था एक्स फ्लोर मान लिया, तो फिर जैसे x-1 x-2 से लेके फर्स्ट फ्लोर तक आ जाए. हाँ, तो कितने अंडे, मिनिमम कितने अंडे चाहिए होंगे कि भाई इतने अंडे तो चाहिए पता करने के लिए कम से कम. मतलब ड्रॉप्स को मिनिमम करना है. जैसे तुमने क्या किया, जैसे वर्स्ट केस लेते हैं अपन. वर्स्ट केस क्या लेते हैं, अपने पास सपोज एक ही अंडा है, तो तुम क्या करोगे, तुम स्टार्ट करोगे फर्स्ट फ्लोर से गिराना. फर्स्ट फ्लोर से गिराया, अंडा नहीं टूटा. सेकंड फ्लोर से गिराया, अंडा नहीं टूटा. थर्ड फ्लोर से गिराया, अंडा नहीं टूटा. फोर्थ फ्लोर से गिराया, अंडा नहीं टूटा. जैसे ही 5th फ्लोर पे गए और तुमने अंडा गिराया, अंडा टूट गया, तो तुम क्या बताओगे कि मिनिमम कौन से फ्लोर तक अंडा नहीं टूट रहा है, 4th फ्लोर तक. ठीक है. वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि तुम पहले से गिराओ, दूसरे से गिराओ, तीसरे से गिराओ, चौथे से गिराओ, ऐसे 100 फ्लोर तक गिराते जाओ और अंडा टूटे ही ना. मतलब 100th फ्लोर पे जाके अंडा टूटे. तो उस केस में अपन ने कितनी बार अंडा गिराया, अपन ने 100 टाइम्स. अब अपन को ये नंबर ऑफ टाइम्स को रिड्यूस करना है. समझ गए कि अपन कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं. और अपन को 2 एग सर ऐसे कर सकते कि पहले हाफ हाइट से गिराए, तो अगर उससे टूट रहा है तो फिर हम उसके आगे जाएंगे, फिर नीचे वाले फ्लोर पे नहीं देखेंगे. ठीक है, तो अगर जैसे 50th फ्लोर पे तुमने गिराया, ठीक है, और 50th फ्लोर पे अंडा टूट गया, फिर तो इसका मतलब तो फिर हम नीचे वाले, इसके नीचे वाले. यस सर. हम नीचे कहाँ चेक करोगे? फिर हम ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हम इसके नीचे नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमको तो वो वाला फ्लोर बताना जहाँ पे अंडा टूट जाता है. हाँ, तो अब 50 के नीचे कहाँ चेक करोगे फिर?
तो इसके भी फिर हाफ सर तो इसका हाफ कर लेंगे, ये 1 से लेके ठीक है। 50 तक का हाफ फिर 25 से गिराएंगे। हाँ तो तुम 100 से पहले तुमने पहला अंडा तुमने गिराया 50 से, दूसरा तुमने गिराया 25 से, अभी भी अंडा नहीं यस टूटा, सर। फिर अच्छा अभी ये टूटा नहीं। नहीं नहीं सर, अगर जैसे 50 पे अंडा नहीं टूटता है तो हम हाँ। इसको ऊपर साइड लेके जाएंगे। अच्छा तो अपन ने क्या अज्यूम करा था 50 में, चलो 50 में अंडा ब्रेक हो गया हाँ सर। और 25 में ब्रेक नहीं हुआ, तो हम 25 और तो 50 के 25 बीच के बीच देखेंगे में। फिर। बीच में ले जाओगे, फिर कहाँ पे चेक करोगे? फिर ऐसे कुछ। इनके बीच फिर में। तो 25 टाइम्स देखना पड़ेगा ना, या इनका हम मिड नहीं ले सकते। हाँ ले लो, मिड तो ले ही लो ना, तुम्हारे पास ही तो है। हाँ हाँ इनका हाँ मिड ले इनका लो मिड चलो। लेके इस पे देखेंगे, अगर अंडा टूट जाता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं टूटता है तो हम फिर 50 साइड जाएंगे। हाँ तो मुझे आंसर बताओ, कितने कितने ट्रायल्स करोगे तुम ऐसे, मुझे वो आंसर चाहिए। समझ गए क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करोगे? मुझे मिनिमम यस नंबर ऑफ सर। ट्रायल्स पता करने हैं क्या, जिससे पता चल जाए कि फाइनल इस फ्लोर सर 11th ट्राई के अंदर अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लोर है। देखो जनरली जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो तुम जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा तुम्हें जज किया जाएगा। सी यू डोंट हैव टू गिव मी द फाइनल आंसर, what you have to see if you are giving an interview, just try to interact as much as possible with the interviewer. Okay, so tell him that I am going to use an approach like binary search. So in binary search what we are doing, we are dividing the array to the half. So first of all we will test in the midpoint, then what we will do, we will, if it is break, then we will check on the bottom side, otherwise we will check on the top side. Okay, then again we will go on the midpoint. Like this what we will do, every time we will reduce our number to half. So if 100 is there, it will be 50, then it will be 25, then it will be 12, then it will be 6. If we are considering the integer division, then it will be 3, then it will be 1. So how many tests are possible? 1 2 3 4 5 6 7. So according to you, you can say that according to me 7 or 8 kind of test you need to check, 7 or 8 times you need to do the trials in the worst case. Okay, so basically this is nothing but यस सर। just I am asking you the binary problem. मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला है, एक बाइनरी, अगर मैं तुमसे इस क्वेश्चन को सीधा पूछता, देर आर नंबर फ्रॉम 0 to 100, यू नीड टू चेक कि उसमें मतलब एक नंबर है 0 to 100, इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो तुम्हें वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो तुम कैसे फाइंड आउट करते? अगर एक एरे गिवन है जिसमें 0 to 100 नंबर है और एक एलिमेंट मिसिंग है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करते? पहले मिड पॉइंट निकालते, फिर चेक करते कि भाई उसके इधर होगा उधर होगा, ऐसे मिड पॉइंट निकालते जाते। सो एवरी टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू स्पीक विद द इंटरव्यूअर एज मच एज पॉसिबल. Okay, just try to show what are you thinking, you need to show your thinking. Okay, as much, चाहे हिंदी में यस सर। बात करो इंग्लिश में बात करो, बट अपनी बात को रखो. ओके, ओके सर। यस सर। सो दीज आर जस्ट, भाई अगर तुम्हें इंटरव्यू देना है तो इसलिए तुमसे बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. ओके, सो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से. So in the last class what we have seen that how we can merge two arrays, right? The array was given to us like this, 2 4 6
8, 10, and the other array which was given to us like this 1, 3, 5, 7, 9, and finally what we want to do, we want to merge the array. So if you want to merge the array, it will be like this. So what is the approach that we have used in this question? We have used the approach that we will use two variables, one is I, one is j. Okay, and whatever will be the smaller one, what we will do, we will insert it in the array. So here this is smaller, so we inserted here, then we moved j to the next point. Now we will compare these two elements, whichever is the smaller, what we will do, we will insert in our final array. So this was the question that we have discussed in the last class. Today we are going to do the set operations. Do you know what is set? Set क्या होता है पता है? Yes, sir. बताओ. There is a suppose ये एक array 1, 2, 3 and this is the array, let's say 2, 3, 4. So मैं बताऊँ set निकालो तो क्या होगा? What is the set? Set means union. नहीं, set means you need to find, मतलब पहले तो इन दोनों का यूनियन कर लो, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ठीक है. फिर डुप्लीकेट्स रिमूव कर दो. तो डुप्लीकेट कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3. तो फाइनली 1, 2 और 4 इसका सेट हो जाएगा. सॉरी 1, 2, 3, 4. सो सेट क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा. So how you will solve this problem? This is our question. So two arrays are given to you. You need to find set of the two arrays. This is the question. I will give you सर 2 हम minutes मर्ज to वाली think. टेक्निक लगाएंगे जो हमने अभी जैसे मर्ज किया था, हाँ, और जो भी डुप्लीकेट होगा उसको हटाते जाएंगे, कंडीशन लगा देंगे उसमें. एग्जैक्टली. तो अपन क्या करेंगे, अपन एग्जांपल लेते हैं पहले तो अनसॉर्टेड एरेज का. ठीक है. लेट्स से वी हैव एलिमेंट लाइक दिस 3, 5 एंड 10, और अगला वाला अपन एरे ले लेते हैं 3, 10, 5 ले लो, तो ये सॉर्टेड नहीं है. ठीक है. 12, 4, 7. तो अगर अपन को अब सेट निकालना है, सो वन थिंग, सी सेट बेसिकली कैसे निकाल रहे थे, अपन को कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है. तो अपन क्या करेंगे, अपन इस 3 को पिक कर लेंगे और चेक करेंगे क्या 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है. नहीं करता तो यहाँ पहला क्या काम करो, पहले तुम सारे एलिमेंट्स को डाल दो. 3, 10, 5 इन तीनों को डाल दिया. अब तुम क्या करो, इस वाले एलिमेंट को पिक करो 12 को, और चेक करो कि 12 इस एरे में एग्जिस्ट करता है क्या. अगर करता है तो उसको 12 को इंसर्ट नहीं करना है, अगर नहीं करता तो इंसर्ट कर दो. तो 12 नहीं करता तो यहाँ पे अपन ने इंसर्ट कर दिया. फिर 4 को चेक किया, क्या 4 एग्जिस्ट करता है, अपन ने ट्रैवर्स किया, नहीं करता. लेट्स से अगला एग्जांपल 7 है, यहाँ पे 7 भी प्रेजेंट था. अगला अपना एलिमेंट आया 7, तो अपन को पहले से पता है कि 7 ऊपर वाले एरे में एग्जिस्ट करता है, तो अपन इस 7 को ऐड नहीं करेंगे, तो ये अपना सेट आ जाएगा फाइनली. समझ में आई अप्रोच, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यस सर. यस सर. ठीक है. तो बेसिकली इसके अंदर अपन ने क्या किया, पहले तो एक एरे के सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया. फिर दूसरे वाले एरे से अपन ने एलिमेंट पिक किया और पहले वाले एरे में कंपेयर करते चले गए. ठीक है. तो इसके लिए अपन ने 4 बार कंपेयर किया. ठीक है. फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपन ने कितनी बार कंपेयर किया, 4 बार. सेकंड एलिमेंट के लिए भी अपन ने कितनी बार कंपेयर किया, 4 बार. थर्ड के लिए भी कितनी बार कंपेयर किया, 4 बार. ठीक है. तो तुम इसको ऐसे बोल सकते हो n इंटू एम टाइप्स का हो गया. जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो टोटल कितने कंपैरिजन हो गए, 4 इंटू 3 दैट इज 12. तो अगर दोनों की साइज सेम होती तो ये क्या होती, n स्क्वायर टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती. ठीक है. तो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो अपने पास और कोई भी तरीका नहीं है इसको सेट बनाने का. ठीक है. अब अगर अपन को उसने बोल दिया कि एरे सॉर्टेड है, 3, 4, 5, 6, 10,
और दूसरा वाला 2 4 5 7 12। अब अगर अपन को वो सेट निकालना है तो पहले बताओ इसका सेट होगा क्या? 2 बताओ। 3 4 5 6 हाँ 7 10 12। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आंसर आया कैसे, आएगा कैसे? How we will get to reach to this point? जो अपने अप्रोच मर्ज सॉर्ट में यूज कर, मर्जिंग में यूज करी थी, सेम अप्रोच यूज करने की कोशिश करो। मर्ज सॉर्ट में कौन, मतलब मर्जिंग टू एरेज में क्या अप्रोच यूज करी थी अपन ने जब एरे सॉर्टेड था? तो व्हाट इज द अप्रोच दैट वी हैव यूज्ड व्हाइल मर्जिंग द टू एरेज? हमने 2 वेरिएबल चलाए थे दोनों एरेज में, फिर हम उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करते गए। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी ये चीज कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे, अपन ने देखा अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करो, छोटे वाले को इंसर्ट कर दो। छोटे वाले को इंसर्ट कर दिया, आगे बढ़ जाओ, वापस से दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। छोटे वाले को इंसर्ट करो और आगे बढ़ जाओ, तो 3 को इंसर्ट किया, आगे बढ़ गए। अब देखो दोनों को कंपेयर किया, क्या ये दोनों इक्वल है? यस। तो क्या यस करो, सर। ऊपर वाले एरे से एलिमेंट को पुश कर दो, मतलब 4 को डाल दिया और दोनों को आगे बढ़ा दो। क्या करना है, दोनों को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि 4 तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। वापिस से कंपेयर करो, क्या ये दोनों फिर से इक्वल आ गए? तो क्या करेंगे, 5 को इंसर्ट करके दोनों को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब वापस से कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो छोटे वाले को इंसर्ट करो, आगे बढ़ जाओ। छोटे वाले को इंसर्ट किया, आगे बढ़ जाओ। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो छोटे वाले को इंसर्ट करो, आगे बढ़ जाओ। 7 को इंसर्ट किया, आगे बढ़ गए। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो छोटे वाले को इंसर्ट करो, आगे बढ़ जाओ। छोटे वाले को इंसर्ट किया, आगे बढ़ गए। अब ये एरे खत्म हो गया, तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स इसको डाल दो। अगर यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होते तो वो भी एज इट इज अपन डाल देंगे। क्या ये कोड समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, सर। सो और सर, बेसिकली हाँ सर जब जैसे कि एरिया अनसॉर्टेड दी है दोनों और हाँ अपने को सॉर्टेड करनी है मर्ज वाली, हाँ तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा कि पहले दोनों को कॉपी कर लो और फिर सॉर्ट करो। एग्जैक्टली, यहाँ तो हाँ वही होगा, और कोई तलेगा नहीं है। ठीक है, अगर सॉर्टेड है तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, अनसॉर्टेड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं कर पाओगे। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए तो तुम बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? m+n होगी। एग्जैक्टली, m+n। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट ट्रेवर्सिंग बोथ द एरेज, और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ m+n, और इसको तुम ऑर्डर ऑफ n भी बोल सकते हो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो। ओके, सो पहले कितनी टाइम यस कॉम्प्लेक्सिटी सर। लग रही थी अगर अनसॉर्टेड है तो? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एंड इफ इट इज सॉर्टेड देन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n। ऑफ n। चलो अपन पहले एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, इनके कोड लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इंटरसेक्शन निकालना है, डू यू नो व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन यस ऑफ सर। टू एरेज। यस सर। What is intersection? Tell me. Suppose if a array जो is एक given to से you with the ज्यादा बार element होता 1, है। 2, 3, a second array is given to you with the element 2, 4, 7, what will be the intersection of A intersection B? 2। Exactly, 2. So what you did, you need to find the common element. Intersection is nothing but to find the common element. Okay, so let us again take the example. What if the arrays are unsorted? Now what is the method that you are going to use to
find the intersection or find common elements in both the array. सर पहली एरे से पहला एलिमेंट पिक करेंगे, उसको इसमें ढूंढेंगे, फिर Exactly. दूसरा। अगर वो एलिमेंट मिल गया तो उसको अपन एक फाइनल एरे में पुश कर देंगे। फिर अपन ने 7 को कंपेयर किया पूरे एरे में, ये मिल गया तो इसको भी पुश कर देंगे। देन वी विल पिक द फिफ्थ एलिमेंट और उसको पूरे एरे में कंपेयर करना है। नहीं मिला तो पुश नहीं करेंगे। फिर 6 को पिक किया, पूरे एरे में कंपेयर किया। इफ़ वी गेट द एलिमेंट वी विल पुश इट। सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर? n into m। n into m. If the length is different, if the length is same, what will be the time complexity? n n square। square। समझ में आ गया श्रुति कैसे करना है ये क्वेश्चन? Yes So sir। you just have to write two for loops, okay? So for I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, and this will be second for loop will be, let's say for j equal to 0, j is less than n, assuming that their length is equal, j plus plus, and if you write, you need to write condition like this. If a of I equal to a of j, let's say you are considering an array which is a vector, so you can write like this: answer dash pushback a of I. Okay, like this will complete. So this is the code to find the common element. Okay, yes sir। Yes sir। again, what if array is sorted? Now if you want to find the common element, how will you approach this question if the array is sorted? Use the same approach that we have used earlier. Just a hint. Now tell me what is the approach that you are going to use. Yes sir, दो लूप लगा के कंपेयर करते जाएंगे। हाँ, वो तो एक अप्रोच है, वो तो n स्क्वायर में हो ही जाएगा। उसके अलावा कैन वी इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हमने 2 को 1 से कंपेयर किया, अगर इक्वल नहीं है तो फिर नहीं। हाँ, सही है, सही है, सही है, सही जा रहे हो। सोचो सोचो सोचो, वापस सोचो। 2 और 1 को कंपेयर किया, इक्वल नहीं है तो जो छोटा है उसको आगे बढ़ा दो। यस सर। 2 और 3 को कंपेयर किया, जो इक्वल नहीं है तो जो छोटा है उसको आगे बढ़ा दो। 5 और 3 को कंपेयर किया, इक्वल नहीं है तो जो छोटा है उसको आगे बढ़ा दो। जैसे ही दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, अपन क्या करेंगे, फाइनली अपने एरे में पुश कर देंगे और फिर आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दो। तो जैसे ही एक एरे ख़त्म हुआ, अब अपन श्योर है कि यहाँ पे अपन को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट आ गया, तो आगे अगर सॉर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है अपन को और कोई एलिमेंट मिलने वाला ही नहीं है यहाँ पे। अगर एक ही एरे में वो हो गया तो सेम हाँ। एलिमेंट उस एरे में। अच्छा, तुम ऐसे कह रहे हो 3 3 5 ऐसा? हाँ फिर तो तुम्हें मतलब जनरली वो होगा नहीं, वो ऐसे ही बोलेगा देयर आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ द एरेस। ओके। क्योंकि अगर तुम्हें कॉमन फाइंड आउट करना है तो वो दो एरे में से कॉमन निकलवाएगा रेदर देन फाइंडिंग कॉमन। ठीक है, इसको निकालना है तो फिर वापस तुम्हें पूरा एरे ट्रेवर्स ही करना पड़ेगा। अगर सॉर्टेड है तो तुम पास वाले एलिमेंट को कंपेयर करते चलो। जैसे ये दोनों इक्वल नहीं, आगे बढ़ जाओ। इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये दोनों इक्वल नहीं, आगे बढ़ जाओ।
इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल आ गए तो इस एलिमेंट को निकाल दो। ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी तुम्हें, समझे? यस सर। यस तो सर। इंटरसेक्शन या कॉमन का क्वेश्चन कर लोगे आप? यस सर। चलो एक यस और सर। कॉन्सेप्ट सीखते हैं डिफरेंस का। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस? So if I say a minus b, what will be the value of a minus b? वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। वो एलिमेंट जो a में है और b में ए नहीं है, माइनस, करेक्ट। ए माइनस। यस वन सर। हो जाएगा। यस सर। क्योंकि a में से अपन वो सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो b में प्रेजेंट है, तो ये 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा गया एक लास्ट एलिमेंट 1। तो इसका कोड कैसे लिखोगे? अज्यूम करो पहला केस कि वो सॉर्टेड नहीं है। These are the two arrays, let's say you have. Now how you will find a minus b? Tell me guys, how you will find a minus b here? सर फिर वही अगर इन स्क्वायर वाली प्रोसेस हो जाएगी वो तो। Exactly. तो बताओ ना, वो अगर सॉर्टेड नहीं है तो और कोई तरीका भी नहीं है अपने पास। 2 को लेंगे, इसमें ट्राइवेस करेंगे है तो ठीक है, फिर अगला 5 लेंगे अगर ठीक है, अगर जैसे 3 नहीं है तो हाँ, तो 3 को इंसर्ट कर देंगे। उसको 3 को। समझ गए अप्रोच? यस सर। श्रुति समझ में आ गई? यस सर। यस और सर, अगर आगे एरे समझ। सॉर्टेड हो 2 3 5 और लेट्स से यहाँ पे 1 2 5, अब now what is the approach that you are going to use? इसका आंसर 3 आएगा ना सर, जो ए में है लेकिन बी में नहीं। हाँ, आंसर तो 3 आएगा। But approach, tell me the approach. सेम अप्रोच यूज होगी जो अभी तक अपन यूज करते हुए आ रहे हैं। हाँ सर, जो छोटा है फिर उसको आगे बढ़ा के, इक्वल आ गया तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे हाँ, और ऐसे पूरी एरे ट्राइवर्स करेंगे जिसमें देखेंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है तो उसको रिटर्न कर देंगे। देखो अपन क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे आई और जे, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि ये 2 है और ये 1 है, तो छोटे वाले को आगे मूव कर दो। ये जे आ गया, ये आ गया, मतलब ये 2 तो लेना नहीं है, आगे मूव कर दो। वापस से कंपेयर किया, छोटा कौन सा एलिमेंट है ये, तो इसको मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या करना है अपन को, आगे मूव करना है। बट आगे मूव करने से पहले ये एलिमेंट सेकंड एरे में आया नहीं, इसका मतलब इसको कहाँ इंसर्ट करना है, अगले वाले में इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट पहले से कॉमन आ जाए तब तो उसको अपन इंसर्ट नहीं करेंगे, बट अगर अपन को आई मूव करना पड़ रहा है तो अपन ये चीज़ देख लेंगे कि
अगर आई मूव कर रहे हैं तो उससे पहले उस एलिमेंट को अपन एरे में इंसर्ट कर देंगे। अब 5 आ गया तो 5 दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों को आगे बढ़ा दो, तो अपना आंसर आ जाएगा 3। क्या ये चीज समझ में आई? सर एक बार और बताइए। चलो ठीक है। Yes, sir. Let's take other example which have more elements. Okay, 2 3 5 7 9 1 2 5 9 11। okay, अपने पास दो एरे हैं। what I told you, you need to take two variables I and j. okay, now we know that we need to find a minus b, correct? so whenever you move the I, you need to insert the value in the other one. ठीक है, अगर I को मूव कर रहे हो तो तुम्हें फाइनल जो आंसर एरे होगा तुम्हें उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए बी में। ठीक है, तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द कंपैरिजन विच इज स्मॉलर 1, सो वी विल मूव द j। अब दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए तो I और j दोनों को मूव कर दो, बट इस बार अपन इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने पास एलिमेंट आया 3 और 5। छोटा कौन सा है इस बार एलिमेंट? 3। 3. बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन को मूव कौन सा वाला एलिमेंट करना पड़ेगा? I। 3 I। बट उसको मूव करने से पहले अपन क्या कर देंगे, कहाँ पे इंसर्ट कर देंगे? न्यू एरे में। न्यू एरे में। अब I और J दोनों किस पे आ गए? 5 पे। 5 तो अब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब I और J दोनों को मूव करना है। बट अगर I और J दोनों को मूव कर रहे हैं तो उस केस में अपन उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, अब 7 और 9 है, तो 7 और 9 का केस में मतलब किसको मूव करना पड़ेगा? 7 को। बट 7 को मूव करने से पहले अपन क्या काम करेंगे? इंसर्ट कर लेंगे इसको। इंसर्ट कर देंगे। अब वापस से 9 क्या आ गया दोनों में? इक्वल। सेम, तो इसका मतलब क्या करना है अपन को? दोनों का आगे तो उसको नहीं करना है मूव करना है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे जाएंगे तो ये लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। I जैसे ही खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी में तो दो ही एलिमेंट आएंगे। यस सर। क्या ये चीज क्लियर है? गॉट इट। Yes, sir. यस सर।